Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to start the chapter recording of transaction second. In this video, we learn about the subsidiary book because in previous chapter you learned that all the business transactions are first recorded in the journal and then they are posted in the ledger account. A small business may be able to record all the transactions in one book only, that is journal. But as the business expands and the number of transactions becomes large, it may become difficult to journalize each transaction in the book only journal. For quick, efficient and accurate recording of business transaction, journal is divided into special journals. राइट स्टूडेंट कि अगर हमारा बिजनेस जो है स्मॉल साइज का है राइट तो हमारे लिए क्या डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं वो एक बुक दैट इज जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो journal is known as the book of original entry. But when the size of business grows, the number of transactions become very large. It is no longer possible to record all the transaction in one journal. तो उसमें जो है पॉसिबल नहीं होता कि आप एक ही जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शन राइट करें. फॉर क्विक एफिशिएंट और एक्यूरेट रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल को सब डिवाइड कर दिया जाता है स्पेशल जर्नल्स में. राइट स्टूडेंट, मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिपीटिव इन नेचर. दे कैन बी इजीली रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल. ईच meant for recording all the transaction of a similar nature. तब हम क्या करते हैं कि जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उनसे पर्टिकुलर एक स्पेशल जो है जर्नल हम मेंटेन करेंगे. इट मीन्स जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स. These special journal are also known as day book or special purpose subsidiary book. Book of original entry. Right student? Each subsidiary book is meant for recording all the transaction of similar nature. Similar nature के transaction जो उन्हीं में रिकॉर्ड किए जाएंगे. For example, all cash transaction may be recorded in one book. Right? The book is called cash book. Second, all credit purchase transaction in recorded in another book. Or credit sales transaction is yet another book, and so on. Thus, the subsidiary book may be defined as book where the transaction are entered first and then ledger accounts are prepared on their basis. कि means एक बुक में रिकॉर्ड कर लिए, जर्नल में, स्पेशल जर्नल में, और उसके बाद फिर लेजर में पोस्टिंग करनी है. राइट स्टूडेंट? These special journal book are also called day book, special journal, special purpose book, subsidiary book, book of original entry. Right student? और जो भी ट्रांजैक्शन इन स्पेशल बुक्स में नहीं आएंगे तो उनको अलग से जो लास्ट जर्नल प्रॉपर में नोट डाउन किया जाएगा. स्पेशल जर्नल प्रूव इकोनॉमिकल एंड मेक डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल इन अकाउंटिंग वर्क. कि जो स्पेशल जो जर्नल होगा वो जो है रखना क्या है, सस्ता भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा और लेबर की डिवीजन भी करना इजी रहता है. मीन्स जो पर्सन जो एम्प्लॉयज़ जिस वर्क को करने में कैपेबल होता है उसे वही वर्क जो है दे दिया जाता है ताकि जो स्पेशलाइजेशन भी आए. In this chapter, we will discuss the following special purpose book. Right, student? The first book is cash book. This book is used for recording all cash transactions, cash receipt as well as cash payment. All banking transactions related to receipt and payment are also recorded in this book. राइट स्टूडेंट? कि कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो कैश रिसिप्ट होंगी या कैश पेमेंट होंगी.
क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में नोट नहीं करेंगे। राइट स्टूडेंट, ऑल जो है ट्रांजैक्शन जो रिसीप्ट और पेमेंट की होंगी, जिनमें आपको कैश पेमेंट रिसीप्ट हुई है, पेमेंट की आपने, वो रिकॉर्डेड करनी है इस बुक में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, परचेज बुक। दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, कि जो गुड्स बिजनेस में जिसकी डीलिंग करते हो गुड्स की, वो गुड्स अगर क्रेडिट पे परचेज की गई हैं तो उनको आप परचेज बुक में नोट करोगे। राइट, ये भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी, बट ओनली जो इसमें नोट करोगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नॉट एसेट। राइट स्टूडेंट, एसेट्स और गुड में डिफरेंस है, ये हमने जो चैप्टर 2 में किया था। थर्ड, परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज when the goods previously purchased on credit are returned to the supplier. Such return are recorded in this book. राइट स्टूडेंट, कि जो गुड्स हमने परचेज किए हैं क्रेडिट पर, अगर उन्हीं गुड्स को हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड होंगे। नाउ कम टू द सेल्स बुक। दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, credit sales of goods, not credit sales of assets. Right student, now next subsidiary book, sales return, जिसको आप रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हो। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक, when the goods previously sold on credit are written by the customer, such returns are recorded in this book. Right student, now come to the journal proper. This book is used for recording the transaction which cannot be recorded any of the above mentioned book. Right student, instead of recording the transaction in a single journal, 6 journal are prepared as mentioned above. राइट स्टूडेंट, कि अभी हमने क्या रीड किया कि जब हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है तो एक जर्नल बुक जो सफिशिएंट रहती है, बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज जो है लार्ज हो जाता है तो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में जो है नहीं रहता, जो है क्योंकि ठीक क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके बेस पर हम जो है क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होगी, एफिशिएंसी आती ही नहीं इस टाइप से। तो जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है स्पेशल जर्नल में। कई जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं रिपीटिव नेचर के होते हैं, वो स्पेशल जर्नल में इजीली रिकॉर्ड हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन हम फिर उसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारी स्पेशल जर्नल बुक्स के नेम की स्पेशल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक, राइट, स्पेशल जर्नल, सब्सिडरी बुक आप इनको बोल सकते हो। और दीज आर दिस सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पज बुक। फर्स्ट कैश बुक, दैट रिकॉर्ड ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। सेकेंड परचेज बुक, दैट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। राइट स्टूडेंट, और परचेज रिटर्न बुक, दैट record the transaction only when goods purchased on credit are returned to the supplier. Those transactions recorded in purchase return book. Then sales book, that record the credit sales of goods. Sales return when the goods previously sold on credit are written by the customer. Such return are recorded in this book. And last is journal proper. This book is used for recording the transaction which cannot be recorded in any of the above mentioned book. Right student, these are the special subsidiary book. First book is cash book. In this video we read the cash book. Before going to the cash book, first we have to know the advantages of special purpose subsidiary book. कि special purpose subsidiary book की advantages क्या है? The following are the uses or advantages of maintaining a number of special purpose book. That instead of one journal
कि एक जर्नल रखने के कंपैरिजन में हम जो ये 6 बुक रख रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। Since there will be 6 subsidiary book in place of one journal, the accounting work can be divided among different persons according to their ability. Also, as the different person will now do the accounting work on different book at the same time, the work will be completed in a very short time. कि हमें क्या है, एक जर्नल नहीं रखना, हम 1 जर्नल के कंपैरिजन में 6 जर्नल बुक रखेंगे, 6 सब्सिडरी बुक, राइट, मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट मीन्स जो वर्क है वो डिवाइड हो गया डिफरेंट पर्सन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिस एम्प्लॉइज की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे बुक मेंटेन करने के लिए दी जाएगी। तो डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो सेम टाइम में अपनी अपनी बुक प्रिपेयर करेंगे। इट मीन्स जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा वो लेस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, कि वर्क कंप्लीटेड इन लेस टाइम, राइट। नाउ इंक्रीज द एफिशिएंसी बिकॉज ईच पर्सन इज कैपेबल द वर्क फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि हर पर्सन क्या है, इंटरेस्टेड द वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर बुक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि उसे एक टाइम में जो एक ही बुक प्रिपेयर करनी है। ही बिकेम एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट। दिस विल लीड टू द वर्क बीइंग कंप्लीटेड क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली। कि एक एम्प्लॉइज को 1 समय में मीन्स 1 टाइम में एक ही बुक जो मेंटेन करनी है, तो क्या होगा, वर्क जो इजिली कंप्लीट होगा और मोर एक्यूरेट भी होगा, राइट स्टूडेंट। थर्ड, ईजीनेस इन पोस्टिंग। Since all transactions of a particular nature are already collected at one place, it facilitates the posting into the ledger. कि सारे ट्रांजैक्शन जो एक बुक के होंगे मीन्स एक नेचर के होंगे, उनको हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैश ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन सेल्स बुक। तो क्या होगा, पोस्टिंग करना जो लेजर में इजीली हो जाएगा, क्योंकि वहीं से जो बैलेंस होगा वो लेजर में पोस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रेडिट परचेज आर कलेक्टेड इन परचेज बुक एंड देन द टोटल ऑफ परचेज बुक इज टू पोस्ट इट टू द परचेज अकाउंट इन द लेजर। कि जितने भी क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन होंगे वो एक बुक परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगे और फिर जो टोटल परचेज बुक का टोटल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा परचेज अकाउंट। कहाँ पर बनते हैं अकाउंट, इन लेजर में, राइट स्टूडेंट। कि लेजर के अंदर परचेज अकाउंट में जो एक ही अमाउंट की पोस्टिंग हो जाएगी। व्हाट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 4th पॉइंट कि 4 एडवांटेजेस क्या रहेगी जब हम स्पेशल जर्नल बुक रखेंगे। तो हमारी जो है ईजीनेस होगी चेकिंग ऑफ द transactions. In case the trial balance does not agree, the existence of separate book helps in the detection of error quickly. कि हमने जो है लास्ट वीडियो में रीड किया था कि सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस ही हमारे लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेकआउट करते हैं। और फॉर सम रीजन कई बार जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, मीन्स डेबिट बैलेंस नॉट इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, देन इट मीन्स सम एरर आर देयर और हमें वो एरर को फाइंड करना पड़ता है। तो हम क्या है इजिली एक बुक को चेक करके जो एरर को इजिली जो डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें जो चेकिंग करने में इजीनेस रहती है। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स। If only one book journal is maintained, only one person will be in charge of it. In such a case, it is easier to commit a fraud. By the use of subsidiary book, the work is divided among various persons. As such, the possibility of fraud and manipulations
is greatly reduced. Internal checking system can be also introduced in such a system. कि फ्रॉड को भी प्रिवेंट करती हैं ये सिस्टम, कि जब हम एक बुक मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं तो उस बुक में जब मिस्टेक होगी तो वो पर्सन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने फ्रॉड किया है या उससे गलती हुई है, तो वो कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देगा। इसलिए वो बुक जो मेंटेन करेगा तो वो क्या करेगा, एक्यूरेट मेंटेन करेगा, उसमें फ्रॉड नहीं करेगा, उसमें मैनिपुलेशन की कोई भी चांसेस नहीं होंगे, राइट। और फुल इंफॉर्मेशन आपको वन प्लेस पर ही मिल जाएंगी। सब्सिडरी बुक में फॉर एग्जांपल कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश बैलेंसेस की सारे इंफॉर्मेशन आपको कैश बुक में मिल जाएगी। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की परचेज बुक में मिल जाएंगी। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की सेल्स बुक में मिल जाएंगी, इजिली अवेलेबल हो जाएंगी वन प्लेस पर। सच इंफॉर्मेशन हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। No such information is available from journal unless all the entries in journal are classified and sorted out separately. इन बुक में हमें इजिली अलग अलग जो बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगी। और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि ये 6 बुक्स हमने रीड की हैं कि ये स्पेशल पर्पज बुक है, बट हर बिजनेसमैन को कंपलसरी नहीं है कि वो 6 बुक जो रखे अपनी बिजनेस की बुक्स को रिकॉर्ड कर, अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर उसकी बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो वो केवल कैश बुक रख सकता है। क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो परचेज बुक रख सकता है, ठीक है। इट मीन्स द नंबर ऑफ बुक्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग ऑन द नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस. Not necessary for every business firm to use all the 6 books. Right, student? Got this point? And fixation of responsibility. Each employee is entrusted with a particular subsidiary book, and as such he can be held responsible for the error committed in that book. कि जिस भी बुक में कमी मिलेगी, जिस भी बुक में एरर मिलेगी, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो बुक को जो है एक्यूरेट जो है मेंटेन करने की कोशिश करेगा। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट कैश बुक. कैश बुक इज ए बुक in which all transaction related to cash receipt and cash payment are recorded. It start with the cash or bank balances at the beginning of the period. Generally it is made on monthly basis. This is very popular book and it's maintained by all organization, big or small, profit or non-profit. कैश बुक ऐसी बुक है जिसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन कैश रिसीप्ट के और कैश पेमेंट के रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश बुक हमेशा बिगनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगी, जो कि बिगनिंग बैलेंस होगा उसका सबसे पहले, राइट, ओपनिंग बैलेंस होगा, मंथली बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। वेरी पॉपुलर बुक है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पॉपुलर बुक है और सारे कैश ट्रांजैक्शन इसी में होंगे। बिजनेस जब लार्ज साइज का होता है तो कैश बुक जो मेंटेन कर लेते हैं बिजनेसमैन, राइट, ताकि उन्हें कैश की नॉलेज होती रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि हर बिजनेसमैन इंटरेस्टेड होता है कैश की नॉलेज के लिए कि कितना उसके पास आया, कितना उससे जो अमाउंट गया। बिग, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सभी कैश बुक मेंटेन करना जो है अपने बिजनेस में अच्छा मानते हैं कि कैश बुक तो मेंटेन सभी करते हैं, यहाँ तक कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन करती हैं रिसिप्ट और पेमेंट बनाकर, राइट स्टूडेंट। इट सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. कि कैश बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं क्योंकि ये जर्नल का पर्पज भी करती है, कि जर्नल व्यू से भी बनाई जाती है, इसलिए हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ हम जो है उसी कैश बुक में नोट कर देते हैं, और फिर जब कैश बुक में नोट कर देते हैं तो देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन लेजर. तो हमें कैश अकाउंट लेजर में नहीं ओपन करना पड़ता,
राइट स्टूडेंट, कैश बुक जो लेजर में ओपन नहीं करना पड़ता, इट मीन्स ये लेजर का भी वर्क करती है, जर्नल का भी और लेजर का भी, इसलिए इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, transaction of cash are not recorded in the journal and no separate account for cash or bank is required in the ledger. So cash book is a subsidiary book and a principal book. Cash book achieve a dual purpose, डबल पर्पज के लिए बनाई जाती है, डबल पर्पज को सोल्व करती है। फर्स्ट, इट इज बोथ ए सब्सिडरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, because when cash book is maintained, transaction of cash are recorded in the journal as all the cash transaction are recorded for the first time in the book of cash book, so it is called book of original entry. और जब कैश बुक मेंटेन कर देते हो तब आपको लेजर के अंदर कैश अकाउंट ओपन नहीं करना, इसलिए तब ये बन जाती है प्रिंसिपल बुक, राइट। तो एज सच द कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक, राइट स्टूडेंट। तो इसी के बेस पर आपका यहाँ एक क्वेश्चन मेंटेन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। इन टैक्स द कैश बुक इज ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट, कि कैश अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता, उसकी जगह पर कैश बुक बन जाती है। Cash transactions are recorded date-wise in order of occurrence. Both of these enable a businessman to know the cash balances on any desired date. But there are still some differences between these two. कैश अकाउंट और कैश बुक में फिर भी डिफरेंस है कि कैश अकाउंट इट इज एन अकाउंट इन द लेजर और कैश बुक इट इज सेपरेट बुक maintained for recorded cash transaction, right student। cash account is open in the ledger and posting is done in this account from journal, कि पहले जर्नल में कैश की ट्रांजैक्शन होगी फिर लेजर में पोस्टिंग होगी। but it is book of original entry because first of recorded all the transaction in the cash book and then posted from cash book to the various account of the लेजर, राइट स्टूडेंट। कि जब हम कैश बुक रखते हैं तो वो हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है डायरेक्टली फिर पोस्टिंग कर दी जाती है, बट कैश अकाउंट ओपन नहीं करना, राइट स्टूडेंट। दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश बुक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस द कैश बुक। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।